हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी इन जापान। तो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे। आज मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। मैं हनेदा एयरपोर्ट से लिमोजिन लेने वाला हूँ टू नरीता एयरपोर्ट। के साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, माय ट्रैवल फ्रॉम टोक्यो टू दिल्ली ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन टोक्यो। First of all, I booked my Air India ticket from Tokyo to Delhi through 901 reservations. After ticket booking, they helped me how to proceed further. They shared three important links with me, and before going through these three links, it is very important to understand that there are two ways to get the RT-PCR test done. One way is that we get it done in Japan and we upload the certificate on the Air Suvidha website to get the exemption for the international passengers. If we are able to do that, we can skip the RT-PCR test in Delhi. But if that certificate is not available and exemption is not approved by the Indian government, then we have to go for an RT-PCR test in India, and it is recommended that we book a prior appointment on the Delhi airport through this link. I booked an appointment in Akihabara through ePark, 2900 yen PCR test and 6000 yen for the certificate, whereas at that time when I did the test, the price is reduced to 2750 yen, and you need to create an account on this website. Then you have to book an appointment for the test through ePark. I register myself and book an appointment on the ePark website. So I got an appointment details on the email for the COVID test. RT-PCR टेस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। अकिहाबारा स्टेशन के पास ही क्लिनिक है, यहाँ से 3 मिनट्स वॉक पर है। तो अभी मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या प्रोसीजर है। 100 मीटर चलने के बाद एक स्ट्रीट होगी यहाँ पे, और ये सामने आपका PCR टेस्ट। Please do not forget to bring your Suica or credit card because cash payment is not acceptable. Test charges is 2750 yen. They will provide the test kit and they will also explain the procedure to perform this test, and they will use the Google Translator, and English is good so you can understand it quickly. यहाँ पे आप सलाइवा टेस्ट दे सकते हैं। ये किट मिली है हमें, यहाँ तक सलाइवा फिल करना है। Follow the procedure and fill the saliva till 1 ml mark, and then put the sticker on the vessel, and then give the complete kit to the attendant, and the test is complete. RT-PCR टेस्ट का सैंपल मैंने यहाँ दे दिया है, तो कल रिपोर्ट आएगी। बता रहे हैं कि मेल पे आ जाएगी, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। My COVID test report came in an email, and it came in 24 hours on the next day, and this report was completely in Japanese and name was written in the hiragana. So be cautious about how you write your name, because you will be translating it into the English using the Google Translator, and the name will be different. So it is important that you take a printout of this mail and show the email ID, and email ID should be containing the proper name. I went to Air Suvidha website and filled the important information and created an account there. After the successful registration, I got a reference number, application reference number, and a PDF file. This PDF file is very useful for at the airport, because this file you need to show it to the airport authorities in Delhi. If you don't have this PDF file, you can fill this self declaration form at the airport as well. To save time, you can fill it online. Then I uploaded my PDF file containing the negative report. Since I did not get the certificate, so the government did not accept the exemption and asked me to book an appointment. So then I visited another link and booked an appointment for RT-PCR test on the Delhi airport, and that was the whole procedure that I followed before traveling to the airport. Now let me share my experience during the travel day. मैंने लिमोजिन की ऑनलाइन बुकिंग की थी, जिसका कि QR कोड मुझे वहाँ शो करना होगा।
लिमोजिन की जो सीट्स हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, तो पुश बैक सीट्स हैं, वी कैन पुश इट बैक एंड कंफर्टेबली स्लीप। और सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है यहाँ पर। बस का जो टाइमिंग है वो 6:35 का है। 6:34 पे उन्होंने लगेज बॉक्स बंद कर दिया है। ड्राइवर आके बैठ चुका है और देखिए 6:35 हो गया और ये बस निकल पड़ी। मैं नरीता एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पहुंच चुका हूं। आज बहुत ज़्यादा टाइम लिया लिमोजिन ने, ऑलमोस्ट 2 आवर्स ले लिए। जनरली 1.5 आवर्स लगता है यहाँ तक आने में। टोक्यो में काफ़ी ज़्यादा जाम था तो इसलिए टाइम लगा है। नरीता एयरपोर्ट भी बिल्कुल खाली है, बहुत कम पैसेंजर्स हैं यहाँ पर। AI 307 काउंटर C। एयर इंडिया की फ़्लाइट तो फुल है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक फॉर्म भरना होगा जो कि एयर इंडिया वाले हमसे भरवाएंगे, जिसमें ये लिखा है कि हम अपने ही रिस्क पे ये ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हमें वापस आना पड़ा या हमें कोविड-19 हो गया या कुछ और इमरजेंसी हो गई तो रिटर्न एयरफेयर टिकट हमें ही देना होगा, और उसके अलावा क्वारंटाइन अगर हमें वहाँ करना होगा तो उसकी कॉस्ट भी हम ही बियर करेंगे। तो उसके हमें साइन करना है फॉर्म पर। चेक इन मेरा हो चुका है। 2 लगेज चेक इन अलाउड है इसमें, 23 kg ईच फॉर इकॉनमी क्लास, तो वो चेक इन हमने करा दिया है और हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। एयरपोर्ट पे डाइनिंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक आप मैकडोनल्ड्स पे खाना खा सकते हैं और स्टारबक्स की कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप प्लान करके चल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और शॉपिंग के लिए भी एक शॉप ओपन है जहाँ से अगर आप चाहें ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, चाहे हेडफोन्स हो चाहे कैमरा हो। एयरपोर्ट के सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट रेडी है। ओवरऑल प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो कोई मेजर चेंज नहीं है। सिर्फ चेक इन के टाइम पे आपसे सिर्फ एक फॉर्म साइन कराया जाएगा फॉर द पर्पस कि अगर कोविड-19 हो जाता है तो इट इज़ अवर रिस्क दैट वी आर ट्रैवलिंग एंड वी मे हैव टू कम बैक ऑन अवर एक्सपेंसेस। और अगर इंडिया में जाते हैं तो वहाँ क्वारंटाइन करना होगा तो वो भी हमें अपने एक्सपेंसेस पे ही करना होगा। तो दैट इज़ दी ओनली चेंज कि एक फॉर्म फिल करना होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही है। ड्यूटी फ्री शॉप्स भी बंद हैं, लीकर एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट बाय हेयर। इमिग्रेशन से पहले ही जो शॉप्स हैं ड्यूटी फ्री की ओपन है, उसके बाद कोई भी शॉप ओपन नहीं है। तो अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं बिफोर गोइंग इंडिया, तो आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन से पहले ही कर लीजिए। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप आ रहे हैं तो 3 आवर्स का टाइम लेकर चलें ताकि आपके पास टाइम सफिशिएंट हो चेक इन करने का, इमिग्रेशन क्लियर करने का। ऑल्दो देयर इज़ नॉट टू मच रश। तो अब चलते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। 10:15 ऑन टाइम बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। Once again, we are inviting the window seat partners, customers with seat number with A or A, window seat. जो विंडो की सीट्स हैं उनको पहले बोर्डिंग करा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमें मास्क और शील्ड मिलेगा। हर पैसेंजर को फेस शील्ड मिल रही है, एक पानी की बोतल। जो फेस शील्ड मिलेगी उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर है जिसे आपने उतारना है। फेस शील्ड पहन के एयर इंडिया से हम लगे हैं अंदर जाने। Morning, ladies and gentlemen. This is your cabin supervisor, Firuza Rishiraj, welcoming you aboard Star Alliance member Air India's Boeing 787 Dreamliner service AI 307 to Delhi.
फ़्लाइट में आपको लंच भी ऑफ़र किया जाएगा, जिसमें कि आपको वेजिटेबल राइस, चिकन, ब्रेड एंड चीज़ एंड स्वीट डिश, वाटर एंड स्नैक्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। यात्रियों, यदि आप दिल्ली से आगे की यात्रा कर रहे हैं तो अब आप दिल्ली हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण करवा सकते हैं। हम लोग एयरलैंड कर चुके हैं। मेरे को फेस शील्ड जो मिली थी उसे हमें डिस्पोज़ ऑफ करना होगा। यहाँ पे येलो कलर के बॉक्सेस बने हैं जिसके अंदर ही हमें डिस्पोज़ ऑफ करना है। तो आइए इसे डिस्पोज़ ऑफ कर देते हैं। अगर आपने ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पर उनकी मेल शो करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आके आपको एक फ़ॉर्म फिल करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो एक मेल आएगी जिसमें कि PDF होगा, तो वो कर लीजिए। तो अभी मैं हूँ लगेज काउंटर के पास। मेरा इमिग्रेशन चेक हो चुका है। तो इसके बाद जब हम कस्टम क्लियर करेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एग्जम्पशन है तो आप डायरेक्ट घर जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोविड के लिए टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। आफ्टर कस्टम क्लियरेंस बाहर आने के बाद स्टेट वाइज काउंटर बने हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखा सकते हैं और एग्जम्पशन पा सकते हैं फॉर गोइंग टू योर स्टेट। तो मुझे एग्जम्पशन मिल चुकी है। In the printout, my email ID and name was written, so it was helpful for me to convince them that this is my report which I receive on the email. और हाथ पे स्टैंप लग चुकी है। इस स्टैंप के बेसिस पे ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं टैक्सी बुक करता हूँ और घर निकलता हूँ। पेरेंट्स को सरप्राइज़ दिया है मैंने विज़िट के लिए, उनको नहीं बताया है, तो देखते हैं उनका रिएक्शन जब मैं घर पहुँचूँगा। मैं अपनी सोसाइटी सिक्का कार्मिक ग्रीस में पहुंच चुका हूं। तो आइए अपने पेरेंट्स को मैं सरप्राइज़ दूंगा। पहुंच गए अपने घर 8th फ्लोर पे। पापा ने बेचाना नहीं लग रहा। क्या बात है? सरप्राइज। हैरान हो गए? और क्या बड़ा सरप्राइज करते हो जो। अरे उठो मैडम, ये कौन आया? मैं भूल जा रही हूँ कि बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है, ये क्या हो रहा है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक्सपीरियंस शेयर किया फ्रॉम टोक्यो टू दिल्ली फ़्लाइट ड्यूरिंग दी कोविड सिचुएशन एंड एमरजेंसी इन टोक्यो। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वापस जब इंडिया से जापान जाऊंगा तो वो भी शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल।